Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 16 of use case of SRE software requirement engineering, which is based on use cases and user stories. So, before moving further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed about traceability. Like how can we trace different steps or different artifacts among multiple development life cycle phases of software product. So we discussed about traceability that included both forward traceability and backward traceability. In forward traceability, we discussed how different steps like requirement can be traced to the use cases, or requirements can be traced to the design which is use cases, or we can say requirements can be traced to the code or test cases. So if we are moving towards forward direction in tracing different artifacts, we are referring to this forward traceability. In backward traceability, we are going to refer to the previous stages. For example, if I am going to trace whether a requirement can exist or whether a requirement exists for a particular test case, then it means I am going towards backward traceability as test case is related to requirement in the case of backward traceability. So in today's lecture, we will be discussing user stories and use cases. Now, what is the difference between these user stories and use cases, and what are the similarities between these two, and in which scenarios we will be going to use user stories over use cases or prefer use cases over user stories. So for both of these, user stories and use cases, we shift from the product centric perspective of requirement solicitation to discussing what users need to accomplish. So there are two different views of or we can say for a system, there are two different perspectives from which we can refer a product. One is, let me clear it. First one is product centered perspective, and the second one is user centered perspective. In the product centered perspective, we are going to describe a product that describes product features. For example, if I am going to make a website for a stock exchange, so there are different formulas which are used or which are applied in that sort of system, which user is unaware of. लाइक अगर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है, मैं चाहती हूँ अगर मैं एक स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के बटन को क्लिक करेगा और हम कह सकते हैं कि यूज़र क्लिक करेगा सिलेक्ट और व्यू स्टैटिस्टिक्स पे. अब यूज़र ने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि स्टैटिस्टिक्स उसको शो हो जाएंगे. अब यूज़र ने कुछ भी नहीं किया, सारा काम बैकएंड पे हमारे सिस्टम ने करना है, ठीक है, लेकिन यूज़र को एज इट इज़ आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसको स्टैटिस्टिक्स शो हो जाएंगे, लेकिन उसने खुद कोई काम नहीं करना. सो अगर हम बैकएंड पे उसके ये सारी डिस्क्रिप्शन बताते हैं, सो दैट विल बी प्रोडक्ट सेंटर्ड पर्सपेक्टिव, जिसमें हम ये शो करेंगे कि हमने अपने सिस्टम में कौन कौन से फॉर्मूलाज ऐड किए हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशंस की हैं. यूज़र सेंटर्ड पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन यूज़र. यानी अगर आप इसमें सिस्टम को इस तरह से डिस्क्राइब करें कि यूज़र कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है, तो वो हमारे सिस्टम का यूज़र सेंटर्ड पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, यानी दैट विल डिस्क्राइब यूज़र सिस्टम इंटरेक्शंस. डिस्क्राइब टास्क दैट यूजर्स विल नीड टू परफॉर्म विद द सिस्टम और यूज़र सिस्टम इंटरेक्शंस, ठीक है. अगर हम यूज़र सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, तो उस केस में हम यूज़र स्टोरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं और यूज़ केसेस को भी यूज़ कर सकते हैं. एंड इन दीज बोथ सिनेरियोज we are going to shift to user centered perspective, which is this one. Describe tasks that users will need to perform with the system or user system interactions.
यूज केसेस एंड यूजर स्टोरीज में कंप्यूटेशनली इंटेंसिव सिस्टम्स, बिजनेस एनालिटिक्स माइट हैव जस्ट अ फ्यू यूज केसेस, ठीक है। अब अगर हम कोई ऐसे सिस्टम्स देखें जो, अगर हम यूज केस डायग्राम बनाएं ऐसे सिस्टम्स की जो कि कंप्यूटेशनली इंटेंसिव सिस्टम होते हैं, यानी जिन पे बैंक एंड पे हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म की होती हैं, लेकिन यूज़र खुद तो कुछ नहीं कर रहा होता, यूज़र ने सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली यूज़र को आउटपुट या रिजल्ट शो हो जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दीज आर कंप्यूटेशनली इंटेंसिव सिस्टम्स। बैक एंड पे इनकी कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब यूज़र कोई काम नहीं कर रहा तो हम कह सकते हैं दे माइट हैव जस्ट अ फ्यू यूज़ केसेस। यूज़ केस डायग्राम अगर हम उनकी देखें तो वो बड़ी ब्रीफ सी होगी, क्योंकि उसमें कोई मेजर फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं होगी जो यूज़र ने परफॉर्म करनी हो, ठीक है। The complexity lies in the computations performed, not in the user system interactions, क्योंकि जो सिस्टम की complexity होती है या जो उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो ज़्यादातर यही फंक्शनैलिटी होती है कि उस सिस्टम ने इंटरेक्शंस, यूज़र सिस्टम इंटरेक्शंस में तो कोई ख़ास काम नहीं होता, उसके जो बैकएंड पे कैलकुलेशंस होती हैं हमारे सिस्टम की complexity उसी में लाई कर रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑटोमेटेड कार वॉश की अगर हम एग्जांपल ले लें, कंसिडर एन ऑटोमेटेड कार वॉश, द ड्राइवर ऑफ द कार हैज़ जस्ट वन गोल टू वॉश द कार विथ परहैप्स अ फ्यू ऑप्शंस, ठीक है। अब अगर हम ऑटोमेटेड कार वॉश की बात करें तो इसमें यूज़र ने कुछ भी नहीं करना, यूज़र ने सिर्फ अपनी कार ला के पार्क करनी है और उसकी कार वॉश हो जाएगी, ठीक है, यानी उसने अपनी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करनी। लेकिन बैक एंड पे जो सॉफ्टवेयर होगा जो उसके अकॉर्डिंगली कार वॉश करेगा, उसके बैक एंड पे हमने काफ़ी कैलकुलेशंस करनी होंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारा सिस्टम कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है, लेकिन उसमें यूज़र सिस्टम इंटरेक्शंस बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी यूज़ केस डायग्राम बहुत ब्रीफ बनेगी, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो बड़ा कम्प्लेक्स होगा। सो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेहतर ये होता है कि हम प्रोडक्ट सेंटर्ड पर्सपेक्टिव यूज़ करें एज कम्पेयर टू यूज़र सेंटर्ड पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग टूवर्ड्स स्पेसिफिकली यूज़ केसेस, कि यूज़ केसेस कैसे यूज़ होते हैं, यूज़ केस डायग्राम कैसे की डिस्क्रिप्शन क्या होती है। It describes a sequence of interactions between a system and an external actor that results in the actor being able to achieve some outcome of value, ठीक है। So basically use case diagram या use case हमें क्या शो करता है कि हमें कुछ इंटरेक्शंस गिवन होते हैं बिटवीन सिस्टम और साथ में एक एक्सटर्नल एक्टर जिसके साथ हमने इंटरेक्शन अपने सिस्टम का शो कराना होता है। जैसे कि हमने पहले भी यूज़ केस डायग्राम बनाई हुई है कि हमें एक्शन की फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म में यूज़ केस का नाम लिखना होता है और साथ में वो एक्टर जो यूज़ केस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसके बारे में भी हमें डिस्क्रिप्शन देनी होती है। द नेम्स इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमने यूज़ केसेस लिखने हैं इन टर्म्स ऑफ यूज़ केस डायग्राम और सिंपली राइटिंग यूज़ केसेस, the name of use cases must be in the form of a verb. For example, registration is a use case, ठीक है, because it is a verb. इसी तरह से form, fill a form, let me write it so that we can get a clear view. अगर हम कहते हैं कि form ये use case नहीं है, ठीक है, लेकिन filling the form और fill the form या form filling ये एक यूज़ केस है, ठीक है। यानी फॉर्म एक वर्ब नहीं था, वो नाउन था, तो वो यूज़ केस नहीं बना, लेकिन जब मैंने कह दिया कि फॉर्म को फिल किया जा रहा है या वर्ब के फॉर्म में मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, सो दैट विल बी अ यूज़ केस। सिलेक्ट strong descriptive names to make it evident from the name that the use case will deliver something valuable for some user, ठीक है। अब नाम हमने हमेशा ऐसे यूज़ करने हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो और डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जैसे मैंने अभी नाम रखा है फिलिंग फॉर्म, अब जो भी देखेगा उसे समझ आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव नाम में समझ आ जाएगी कि अच्छा फॉर्म फिल करने की बात हो रही है, ठीक है। सो जब भी हम नाम रखेंगे अपने यूज़ केसेस के, दैट नेम शुड बी so that we can get a clear view or that will be understandable for the user, ठीक है। अब कुछ सैम्पल यूज़ केसेस हैं, सैम्पल यूज़ केसेस में ये बुक के ही कुछ यूज़ केसेस हैं, सो हम इनको रेफ़र कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो यूज़ केस है दैट इज़ केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। सो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक सिस्टम है जो हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ये चीज़ ट्रैक करना चाह रहे हैं। एक प्रोडक्ट है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि डिफरेंट केमिकल्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम जितना केमिकल इशू करा रहे क्या उतनी ही प्रोडक्ट बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम रखा, यानी मैं ये चेक कर सकूं कि किसी ने अगर केमिकल ऑर्डर किया है तो क्या उतनी ही प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर की है या नहीं की, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं।
जिसको हम यूज़ केसेस के फॉर्म में बात करें, जैसे रिक्वेस्ट अ केमिकल, ठीक है, फिर प्रिंट मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, चेंज अ केमिकल रिक्वेस्ट, चेक स्टेटस ऑफ एन ऑर्डर, जनरेट क्वार्टरली केमिकल यूजेज रिपोर्ट्स, ठीक है, ये सारे एक्शंस हैं जिसके फॉर्म में हमने यूज़ केसेस बता दिए हैं कि ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ये परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट यूज़ केसेस या सैम्पल यूज़ केसेस हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एक सिस्टम की हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली एयरपोर्ट चेक इन, अब एयरपोर्ट चेक इन में भी हम जब एयरपोर्ट में चेक इन करते हैं तो हम फ़्लाइट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, बोर्डिंग पासेस वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सीट चेंज करनी है, सीट नंबर, यू कैन चेंज दैट, यू कैन चेक योर लगेज, यू कैन परचेज सम अपग्रेड। सो ये सारी वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ यूज़ केस। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर भी मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे आपको पता है, हमने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो, इस तरह का कोई रिकॉर्ड रखना हो वो रख सकते हैं। अगर कोई बिल जनरेट करना हो या कोई ट्रांजैक्शन को सर्च करना हो, वी कैन सर्च दैट। सो वो डिफरेंट सैम्पल यूज़ केसेस हैं जो इसके अकॉर्डिंगली हम रख सकते हैं। अगेन बुक की ही स्क्रीनशॉट है विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ओवर हेयर। सिमिलरली ऑनलाइन बुक स्टोर, अब ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर ऑब्वियस सी बात है, आप अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, आप कोई बुक इशू करा सकते हैं, अगेन आप कोई ऑर्डर कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट को। इसी तरह से अगर आपने कोई शिपमेंट आपकी आ रही है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। सो जितने भी नेम्स होंगे दैट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल फंक्शनैलिटी कौन सी है जो ये यूज़ केसेस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज़र स्टोरीज। अब यूज़र स्टोरीज में short simple description of a feature told from the perspective of the person who desires the new capability, usually a user or customer of the system, ठीक है। अब यूज़र स्टोरी का मतलब ये है कि हमने उस फीचर को, जो भी फीचर है, हमने उसको किसी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बताना है फ्रॉम द यूज़र्स परस्पेक्टिव। अब इसका एक प्रॉपर टेम्पलेट होता है जिस फॉर्म में हम यूज़र स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो टेम्पलेट क्या है? as a, let me highlight it, as a type of user, which is this, as a, और type हमने explain करनी होती है, whether as an administrator, whether a customer, as a में हमने type user की represent करनी है। I want some goal, or you can say I want some feature, so that some reason, ब्रैकेट के अंदर, या हमने सो दैट के बाद वो रीज़न स्पेसिफाई करनी है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमने वो सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट इट लाइक एज अ यूज़र, और वी कैन से एज अ एज एन एम्प्लॉय। इसको मैं चेंज करके ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर दूंगी। एज एन एम्प्लॉय आई वॉन्ट to request a chemical so that I can manufacture product, ठीक है। सो दैट मैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैंने उस प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर अमाउंट है केमिकल की वो मैंने इशू की है। सो यू कैन ऑल्टर इट डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर सिनेरियोज। तो जो यूज़र स्टोरीज लिखते हैं दैट डजंट गिव अस सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, वो हमें बैकग्राउंड या पर्सपेक्टिव नहीं देता, बैकग्राउंड नहीं देता अपने सिस्टम का, लेकिन वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता देता है डिफरेंट फीचर्स की अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ यूजर्स विच आर गोइंग टू specify that. User story also identifies the user class and the rationale behind the request for that system capability, ठीक है। आपको अगर कोई कैपेबिलिटी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ फीचर, सो साथ में आपने ये भी रिप्रेजेंट कर दिया सो दैट आई कैन मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, यानी कि हमने जो भी फंक्शनैलिटी रिक्वायर है उसके साथ ये भी बता दिया कि उसका रैशनल क्या है, वो हमें क्यों रिक्वायर्ड है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ यूजर स्टोरीज कि हम साथ में ये भी बताते हैं कि उसकी रिक्वेस्ट हमें क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। एज अ टाइप ऑफ यूजर आई वॉन्ट अ सो दैट रीज़न। अब यूज़ केसेस और यूजर स्टोरीज का अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए इसकी। अब यही सिस्टम है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। अगर इसका एक यूज़ केस बना हुआ है रिक्वेस्ट अ केमिकल, तो इसके अगेंस्ट जो यूज़र स्टोरी होगी वो क्या होगी, उसमें हमने यूज़र भी बताना होगा और जो केमिकल आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रीज़न भी बतानी होगी। सो एज अ केमिस्ट
आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अ केमिकल सो दैट आई कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसकी ये रीज़न है। सिमिलरली एक एयरपोर्ट चेक इन था, इसके लिए एक यूज़ केस बना हुआ था चेक इन फॉर अ फ्लाइट। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट हमने एक्शन भी बता दिया, एक्टर भी बता दिया और साथ में रीज़न भी बता दी। सो एज अ ट्रैवलर आई वॉन्ट टू चेक इन फॉर अ फ्लाइट सो दैट आई कैन फ्लाई टू माई डेस्टिनेशन। ठीक है, इसी तरह से ऑनलाइन बुक स्टोर का भी देख लेते हैं। इन ऑनलाइन बुक स्टोर हमने एक यूज़ केस लिखा है विच इज़ अपडेट कस्टमर प्रोफाइल। ठीक है, कि कस्टमर अपने प्रोफाइल को या अपना जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर सके। इसी के अगेंस्ट हमने यूज़र स्टोरी भी बता दी। एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू अपडेट माई कस्टमर प्रोफाइल सो दैट फ्यूचर परचेजेस आर बिल्ड टू अ न्यू क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसकी रीज़न ये है कि जो नया क्रेडिट कार्ड नंबर है मैं चाहती हूँ सारी ट्रांजैक्शंस उस पर हों। सो मैंने इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दी। यूज़ केसेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर जो यूज़ केस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस यूज़ केस वी हैव टू राइट यूज़ केस नेम। जो भी यूज़ केस हो, जब हमने उस पर कन्वर्सेशंस की या हमने एनालिसिस किया विद द टीम, तो इसके बाद जो हमारे पास आर्टिफैक्ट आएगा दैट इज़ यूज़ केस स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कि हमारे पास स्पेसिफाई होके प्रॉपर फॉर्मेट में यूज़ केसेस लिखे हुए आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी दैट शुड बी डिस्क्रिप्टिव नेम्स, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस और वर्ब्स। सो वो उस फॉर्मेट में हमारे पास यूज़ केसेस लिखे हुए आ चुके हैं। जब हमने इन यूज़ केस पे एनालिसिस किया तो एनालिसिस के बाद दिस इज स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट थिंग्स, यानी दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो हम उन यूज़ केसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हम उसमें से निकाल सकते हैं। सेकेंड वन इज़ टेस्ट्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से टेस्ट हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं तो हमें उन रिक्वायरमेंट्स को एट द एंड ऑफ द सिस्टम, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमें उनको टेस्ट भी करना होता है। सो हम इन्हीं यूज़ केसेस के अकॉर्डिंगली हम कुछ रिक्वायरमेंट्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और साथ में हमें उनके अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट भी लिखने हैं ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट कर सकें। ठीक है, अगर हम इसको कंपैरिजन करें यूज़र स्टोरी के साथ तो अगेन ये चीज़ तो सेम है कि यूज़र स्टोरी है और उसकी कन्वर्सेशंस के बाद कुछ रिफाइंड यूज़र स्टोरीज आ गई हैं। ठीक है, उन्हीं यूज़र स्टोरीज को हमने रिफाइन करके प्रॉपर फॉर्मेट में यूज़र स्टोरीज को मेंशन कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, जब हमने प्रॉपर कन्वर्सेशन की तो कन्वर्सेशन के बाद हमें एक्सेप्टेंस टेस्ट मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज़र स्टोरी कि जब भी हम यूज़र स्टोरी की बात करते हैं तो हम जैसे यूज़र स्टोरी को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट वी गेट टेस्ट केसेस और एक्सेप्टेंस टेस्ट एज वेल।